ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ملتوی کر دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق حلقہ NH 66 وزیر آباد، NH 96 فیصل آباد کے ضمنی انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں۔ NA 129، NA 143، NH 66، NA 104، NA 96 سمیت PP 98 فیصل آباد، PP 203 ساہیوال میں بھی ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف چین کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیجنگ کے کیپٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس کی بیجنگ میونسپل کمیٹی کی رکن محترمہ ہین زورنگ، چین میں تعینات پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور سفارتی عملے نے وزیراعظم کو الوداع کہا۔ اپنے دورہ چین کے دوران وزیراعظم نے تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے 25ویں اجلاس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ وزیراعظم فاشزم کے خلاف عالمی جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات میں شریک ہوئے۔ وزیراعظم نے چین کے صدر، وزیراعظم روس، ایران، ترکیہ، آذربائیجان، تاجکستان کے صدور سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم نے دوسری چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں شرکت بھی کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس تاریخی کانفرنس میں شرکت باعث فخر ہے۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کانفرنس میں شریک ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ B2B کانفرنس دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کی عکاس ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی باہمی احترام، اعتماد اور تعاون پر مبنی ہے۔ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان اور چین کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صدر شی جن پنگ نے 2015 میں اسلام آباد کا دورہ کر کے سی پیک کی بنیاد رکھی۔ چین نے سی پیک کے تحت $35 ارب کی سرمایہ کاری کی، جس کے تعاون سے اورنج ٹرین اور مختلف ڈیمز تعمیر ہوئے۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں 3 سال میں توانائی بحران پر قابو پایا گیا، زراعت اور صنعت بحال ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات کو مزید مستحکم اور مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان جلد چینی کیپٹل مارکیٹ میں پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ ملاقات میں سی پیک کے تحت ML1 کراکرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ اور گوادر پورٹ کے جلد نفاذ پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاک چین وزرائے اعظم کی ملاقات میں سی پیک فیز 2 بشمول 5 نئے کوریڈورز پر تیزی سے کام کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ B2B انویسٹمنٹ کانفرنس میں 300 پاکستانی اور 500 چینی کمپنیوں نے شرکت کی، جس میں زراعت، معدنیات، ٹیکسٹائل، صنعت اور IT کو سرمایہ کاری کے لیے ترجیحی شعبے قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم نے SCO سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی پر چین کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک چین کے ترقیاتی ماڈل سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی میں حمایت پر چینی کی صدر کا شکریہ ادا کیا اور شی جن پنگ کے عالمی اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں جوائنٹ ایکشن پلان 2024-29 پر دستخط کو اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے سائنس، ٹیکنالوجی، IT، میڈیا، زراعت سمیت کئی معاہدوں کی تقریب میں شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ سال پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایان شان انداز سے منانے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے قطر کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے اعلیٰ سطح کی فوجی تعاون کمیٹی کے دوسرے دور کے اجلاس میں شرکت کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع قطر شیخ سعود بن عبد الرحمن اور چیف آف اسٹاف قطری افواج لیفٹیننٹ جنرل جاسم محمد احمد المنال سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران دونوں جانب سے خطے میں بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور علاقائی و عالمی سطح
सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और दिफा और सलामती के शोबों में मुस्तकबिल में ताउन के इम्कानात पर बात की, जो कि आला सतह की फौजी ताउन कमेटी के दायरे कार में आता है। कतर की सिविल और अस्करी क़यादत ने खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाकिस्तान के कलीदी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। क़बल अज़ीं कतरी अफवाज के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को एक चाको चौबंद फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में चौहंग रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की बहाली रिलीफ की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज़ ने आर्जी क्लास रूम का मुआयना किया, सैलाब ज़दा ख़ानदानों के बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने फील्ड अस्पताल मेडिकल कैंप का भी जायज़ा लिया। ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात करके रिलीफ इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को रिलीफ के इक़दामात पर तफसीली आगाह किया। मरीम नवाज़ ने इंतज़ामिया को हिदायत दी कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन सूबाई रेन एंड फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल पहुंच गए। सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना ने सीनियर वजीर शर्जील मेमन को ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबाई मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे सरगर्म है, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हुकूमत सिंध की तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। शर्जील मेमन ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल कायम है। पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। वज़रा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स कायम हैं, लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। 28,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 22 के तहत फुल कोर्ट तश्कील का फ़ैसला कानून के मुताबिक है। रजिस्ट्रार या कोई और अथॉरिटी कमेटी के फ़ैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि कमेटी के फ़ैसले पर चीफ जस्टिस की वजाहत अमल दरामद न करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। एक्ट में होने वाली तरमीम आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखती। दरख्वास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फ़ैसले पर अमल दरामद की इस्तदा करते हुए कहा गया कि कमेटी के फ़ैसले पर अमल दरामद न करने से मुतालिक इंतज़ामी फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। पानी का स्केल बहुत ज़्यादा था, टीम वर्क से जानी नुकसान कम हुआ। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि सतलुज और रावी खुश्क हो चुके थे, वहाँ पानी बहुत आया है। गवर्नमेंट के तमाम इदारों ने एक टीम के तौर पर काम किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सैलाब मुतासर इलाकों से लाखों अफराद को निकाला है। अगर गवर्नमेंट अलर्ट न होती तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। मुशीर वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। 9 मई को ये कोशिश हुई, 24 और 26 तारीख को भी कोशिश की गई। सिविल वॉर की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई भी धड़ा हो उसको सख्ती से रोकना चाहिए। किसी ज़माने में आर्मी चीफ की मुद्दत 4 साल होती थी, फिर 3 साल हो गए, अब आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो गई है। उन्होंने कहा कि 2027 में मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 78 सालों में इस कौम को मार के हक की सूरत में फ़ख्र करने का मौका दिया है। और भारत ने दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए और पाकिस्तान को हाई कमीशन के जरिए मुमकिन सैलाब से मुत्तला कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शदीद बारिश के सबब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया चनाब पर बने सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए। भारतीय मीडिया का बताना है कि बाला इलाकों में शदीद बारिशों के सबब दरिया चनाब में तुग़यानी है। दूसरी जानब भारत ने एक बार फिर हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को सैलाब के हवाले से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए मरासले में कहा गया कि दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में पानी छोड़े जा रहा है, जबकि मरासले में कहा गया है कि सैलाबी पानी छोड़े जाने की वजह से सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। वज़ारत आबी वसाइल ने भारतीय मरासले के बाद फ्लड अलर्ट जारी कर दिया।
खबर देंगे दरियाई चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया है, जबकि दरिया रावी में हेड सुदनाई से आने वाले पानी के दबाव से शगाफ पड़ने से बड़ी आबादी ज़ेरे आब आ गई। मुल्तान में सुदनाई कैनाल में हेड सुदनाई से आने वाले पानी के दबाव से शगाफ पड़ने से बस्ती खोखरा समेत बहुत बड़ी आबादी ज़ेरे आब आ गई। इंतजामिया का कहना है सुदनाई कैनाल में गुंजाइश से 4 गुना ज़्यादा पानी आ चुका है। सुदनाई कैनाल में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने की कोशिश की जा रही है। दरिया रावी में हेड सुदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी का पानी ओवरफ्लो होकर रावता नहरों में दाखिल होने से मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। रांगू नहर के शगाफ से दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। सुदनाई लिंक कैनाल के रांगू नहर के शगाफ को पुर किया जा रहा है। दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है, जिसकी वजह से अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव है। कमिश्नर मुल्तान का कहना है हेड मोहम्मद वाला पर पानी की ज्यादा से ज्यादा हद 417 फीट है। शगाफ डालने का फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। आबादी को बचाने के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासर अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। और एक बार फिर भारत की आबी जारियत के बाद दरिया चनाब ऊंचे दर्जे का सैलाब आ चुका है। इस वक्त दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर 5,10,000 क्यूसेक के पानी का रेला गुजर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइश की इस रिपोर्ट में। भारतीय आबी जारियत के बहस दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ चुका है। नशेबी इलाके पहले ही सैलाबी पानी में डूबे हुए थे। मजीद आबी जारियत से मजीद मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दरिया चनाब पर मौजूद चनाब नगर के मुकाम पर इस वक्त 5,10,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंतज़ामिया के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में शराबी रेले में मजीद इजाफा हो सकता है। इस वक्त रिहायशी इलाकों कोट अमीर शाह, बाजवा कलोनी, यारे की, खिजर की, सांगरा, खिचियाँ, छनियाँ और कई देहात दोबारा पहले से ज़्यादा ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई इलाकों में अवाम अपनी मदद आप के तहत बोरियों के बंद लगाकर बैठी हुई है। दूर दराज इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया मुतासरा देहातियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में अभी भी मसरूफ़ है। ज़िला भर में रेस्क्यू 1122 ने 12 फ्लड रिलीफ कैंप्स कैम किए थे, जो अभी भी फ़ाल हैं। DC चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो हफाजती मकामात पर मुंतकिल हो जाएं या सरकारी तौर पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स में आ जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी मुतासरा शख्स फ्लड रिलीफ कैंप को छोड़ के ना जाए जब तक इंतज़ामिया उनको इजाज़त ना दे। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। यहाँ आपको बताएं कि अब्दुल हकीम दरियाए रावी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सूरत हाल तशवीशनाक है। पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। अब्दुल हकीम में सैलाबी रेला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा है। रेलवे कंट्रोल पर वार्निंग जारी कर दी गई है। खानेवाल शुरकोट सेक्शन आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। दरियाए रावी का सैलाबी रेला बाटियावाला के पुल से गुजरने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर अब्बास सियाल से, जो हेड ब्रिज पर मौजूद हैं। जी अख्तर, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। अगर दरियाए रावी की सैलाब की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त दरियाए रावी हेड सिदनई के मकाम से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसने इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार की हुई है। जबकि रात के वक्त इंतजामिया ने माई सफूरा के बंद को कट लगाया था, लेकिन पानी की शिद्दत में कमी नहीं आई। तो सुबह से जो दरियाए रावी के सैलाबी रेले ने रेलवे ब्रिज को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसको तमाम किस्म की रेलवे के लिए बंद कर दिया गया और सुबह से रेलवे नहीं गुजरी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके करीब जो बंद था उसमें शगाफ पड़ने से करीबी देहात ज़ेरे आब आए हैं। कई एकड़ पर जो खड़ी फसलें थी वो ज़ेरे आब आ गई हैं और लोगों ने नकल मकानी कर ली है, इर्द गिर्द के बनों पे मौजूद हैं और खुद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हम हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं और ये जो पानी की शिद्दत है इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कम होगी तो हम अपने घरों को लौटेंगे। जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर शकरगढ़ में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई। मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई, जहाँ सैलाब ज़दगान को रिहाइश, खाने पीने की अशिया और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन शेख, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ के हमरा मौजूद है। हसन से मज़ीद जान लेते हैं। हसन, बताएगा किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर तहसील शकरगढ़ में सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फ्लड कैंप का इनकाद कर दिया गया है। तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ अदनान आतिफ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कितने कैंप लगाए गए हैं और क्या क्या सहूलियत दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ शरीफ की हदायत के मुताबिक जारी हैं। जिन लोगों के घर गिरे हैं
ہم نے ان لوگوں میں جو ٹینٹس ہیں ان کے ہینڈ اوور کر دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ لگا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈم کی خصوصی ہدایت پر ہم نے ٹینٹ سٹیز بنا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے دسترخوان بھی ہوں گے۔ یہاں پہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جو ٹینٹ سٹیز ہیں یہ ہمارے فلڈ ریلیف کیمپس کے علاوہ ہیں، اور ان ٹینٹ سٹیز میں 3 وقت کھانا بھی دیا جائے گا۔ ابھی ہم نے لوگوں میں کوئی 500 کلو کے قریب جو ہے وہ فروٹ تقسیم کیا ہے، جو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ لوگوں تک پہنچنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ اس مشکل گھڑی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم نے ڈیفرنٹ لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس میں ہم ٹینٹ سٹیز، وہاں پہ ہمیں کنٹرولڈ ماحول میں لوگوں کو کھانا کھلانا، وہاں پہ ان کو رہائش دینا اور ان کی ضروریات کو مینیج کرنا، وہاں پہ موبائل ٹوائلٹس جو ہیں وہ ارینج کرنا ہمارے لیے ایزی ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے اسسٹنٹ کمشنر شکر کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے تحصیل شکر گڑھ میں 100 سے زیادہ فلڈ ریلیف کیمپ کر دیے گئے ہیں جہاں پر متاثرین کو پھل اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جی دوسری جانب مظفر گڑھ میں دریائے چناب کا سیلابی ریلا داخل ہو کر نشیبی علاقوں میں تباہی مچا رہا ہے۔ 70 سے زائد موزہ جات متاثر، جبکہ خان گڑھ کی متعدد بستیاں بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظفر گڑھ سے محمد سجاد اسلم۔ دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو دریائے چناب میں سیلاب اس وقت عروج پر ہے۔ سیلابی ریلا جو ہے وہ اس وقت مظفر گڑھ سے گزر رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے، اور جو نشیبی علاقے ہیں اور دریائی پٹی ہے اس میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور جو صورتحال ہے وہ سنگین سے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مظفر گڑھ پل چناب کے نزدیک جو ہے وہ 5 بریجنگ پوائنٹ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پانی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے مشاورت سے جو بریجنگ پوائنٹ ہیں ان کو بریج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نقصانات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نقصانات اب تک جو 70 موزہ جات ہیں مظفر گڑھ کے وہ سیلاب سے زیر آب آ چکے ہیں، اور ان میں ہزاروں ایکڑ کی جو فصل ہے وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر کے آئے ہیں، اور جو سینکڑوں گھر ہیں وہ دریا برد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو 22 فلڈ ریلیف کیمپ ہے وہ بھی قائم کیے گئے ہیں، جن میں سیلاب متاثرین کے لیے کھانے پینے کا انتظام، رہائش کا انتظام، طبی سہولیات، اور ان کے لیے جانوروں کے لیے بھی جو ویکسین ہے اور جو چارہ ہے وہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو سیلابی ریلا ہے یہ مظفر گڑھ اور خان گڑھ کے علاقوں سے گزر رہا ہے، اور اس نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے۔ رات کے جو سیلابی ریلا ہے اس نے خان گڑھ کی متعدد بستیوں، جن میں بستی جام ہے، اس کے علاوہ بستی کٹھیلا ہے اور بستی لنگا ہے، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن ریسکیو اور پنجاب پولیس کی بر وقت کارروائی سے اور آپریشن سے ان جو مکین ہیں، جو سیلاب متاثرین ہیں، ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر گیا تھا۔ جی صوبہ پنجاب میں پہلی بار کلینک آن بورڈ سروسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں کشتیوں پر اسپتال قائم کر دیے گئے۔ پنجاب ہیلتھ ٹیم سیلاب متاثرہ اضلاع میں مصروف عمل ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں خواتین اور بچوں کے علاج معالجے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ حاملہ خواتین کے چیک اپ، ملٹی وائٹامن اور سینیٹری کٹس، ضروری ساز و سامان بر وقت اسپتال پہنچانے کے لیے رورل ایمبولینس سروس فراہم کی گئی۔ بچوں کے علاج، ویکسینیشن، غذائی قلت کی اسکریننگ، کیڑوں کے کاٹنے، جلدی امراض، پیٹ کی بیماریوں، ہیضہ اور ملیریا کے علاج کے لیے بھی کیمپوں میں انتظامات موجود ہیں۔ ORS، اینٹی بائیوٹک اور دیگر ضروری ادویات کی کافی مقدار بھی فراہم کی گئی۔ صوبے بھر میں 968 کلینک آن ویلز اور میڈیکل ریلیف کیمپس قائم ہیں جہاں متاثرین کو علاج کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 40 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر سیلاب سے 35 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل PTM پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ اب تک پنجاب میں سیلاب سے 3,944 موزہ متاثر ہو چکے ہیں۔ ریلیف کیمپس میں 25 سے 30 ہزار لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 14,96,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ سدنائی کے مقام پر راوی کا پانی چناب میں جانے کی بجائے واپس آ رہا ہے۔
जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। दूसरी जानिब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलोकी के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 1,14,130 क्यूसेक है। दरिया रावी में सुदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,60,580 क्यूसेक है, जबकि पानी का अखराज 1,57,580 क्यूसेक है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में जस्टिक के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद और अखराज 85,980 क्यूसेक है। पाकिस्तान में हालिया बारिश और भारत की आबी जारियत के बायस अंदरून सिंध में मुमकिन सैलाब का ख़तरा। पाक आर्मी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पाक फ़ौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ पेश ख़तर इलाकों में तैनात हैं, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की शाना बशाना काम करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध महकमा आबपाशी के मरम्मती अमले को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। हिफाजती बंदों पर गश्त और पैकेट्स में इजाफा कर दिया गया। कच्चे के इलाकों से निकलने वाले अफराद की मदद फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए। इलाका मकीनों ने पाक फौज और रेंजर्स सिंध की इन काविशों को सराहा। अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची के जदीद कैंट स्टेशन का 30 सितंबर को इफ्तिताह का ऐलान कर दिया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजिरों सनतकारों से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे ने कहा कि कराची कैंट स्टेशन पर बनने वाला CIP लाउंज यूरोप से बेहतर होगा। सखर, हैदराबाद और दीगर शहरों के स्टेशन भी जदीद बनाए जा रहे हैं। 40 स्टेशन पर वाईफाई सहूलत मुहैया की जा रही है। 155 स्टेशन को सोलराइज करने जा रहे हैं। 60% हो चुके हैं, जबकि कराची के 27 स्टेशन सोलराइज होने के इक़दामात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक के 2 अरब की फाइनेंसिंग से कराची ता रोडी रेल ट्रैक को बेहतर बनाने का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे सफरी मसाफत 4 घंटे कम हो जाएगी। कराची से रोडी तक 480 किलोमीटर ट्रैक को बेहतर किया जाएगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कराची से अफगानिस्तान तक रेलवे मंसूबे पर भी काम हो रहा है। इसी तरह कराची से गवादर और गवादर से कराची तक रेलवे मंसूबे के लिए भी काम किया जा रहा है। रेलवे को डिजिटलाइज कर रहे हैं। तमाम स्टेशन पर वाईफाई और ATM मशीन्स नस्ब करेंगे। पंजाब हुकूमत ने गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पैरा के SDOs को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। पैरा को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क भी दे दिया गया। मरीम नवाज की सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि रोटी का नर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे बैग का नर्ख 1810 रुपये से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। कराची प्रेस क्लब के बाहर कासिम गारमेंट्स कंपनी के वर्कर एक्शन कमेटी का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना है कई सालों से कंपनी में काम करने के बावजूद उन्हें मुसलसल हरासानी, संगीन धमकियों का सामना है। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मलीर के इलाके के आदिल मुश्ताक आराई और उसके साथ ही भत्ता वसूल करने के लिए मजदूरों को अगवा और कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। कारकुनों का कहना था कि आदिल मुश्ताक आराई संगीन जराइम में मुलव्विस है और उसके खिलाफ थाना सखन और शाह लतीफ़ में मुकदमात भी दर्ज है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि IG सिंध और DG रेंजर्स फौरी कार्रवाई करते हुए आदिल मुश्ताक आराई और उसके साथियों को गिरफ्तार करें ताकि मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां मजहबी जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मियाँ इरफान रहमानी से, जो एक स्टॉल पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी इरफान, मज़ीद आगाह कीजिएगा कि चीचा वतनी में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बिल्कुल मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही चीचा वतनी शहर और गिरदोनवा में जगह जगह सजावटी स्टॉल सज गए हैं, जिसमें नलायन पाक, बैचेस और दीगर ऐसी चीजें जो है बच्चे बड़े खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर इंतजामिया की जानिब से बात करता चलो तो इंतजामिया की जानिब से गली, मोहल्ले, चौक, चौराहों और बाजारों और मसाजिदों को भी लाइटों से सजा दिया गया है। इसी तरह घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, मसाजिदों में
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक किया जा रहा है। इसी तरह मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। वो सजावटी स्टॉल पे मौजूद है, वो क्या खरीदने आए हैं और क्या कहते हैं। ਝੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬੈਚ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। जी आपने खरीदार की बात सुनी, इनका कहना था हम बच्चों के लिए बैचेस लेने आए हैं और झंडियां लेने आए हैं और जो है बरकी कुमकुमों के साथ अपनी गली और घर को सजा कर आए हैं। इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के दिन भरपूर तरीके से जोशो खरोश के साथ जुलूस भी निकालेंगे। सिंध हुकूमत का मजदूरों के लिए इनकलाबी कदम। सिंध इंश्योरेंस कंपनी के इशराक से मुल्क का पहला डिजिटल वर्कर वेलफेयर कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध शाहिद अब्दुलसलाम तहीम ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये कार्ड 34 लाख सनदी मजदूरों को शफाफ, खुदकार और कागजी कार्रवाई से आज़ाद सहूलत फराहम करेगा। अब मजदूरों को लाइन में लगने या ब्रोकर्स पर निसार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तमाम सहूलतें बराह रास्त उनके शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होंगी। वज़ीर मेहनत ने बताया कि सिर्फ रजिस्टर्ड मजदूर ही इस कार्ड के अहल होंगे और उनके लिए इंदराज का अमल निहायत आसान बनाया गया। मजदूर वेबसाइट पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और इदारे की तफसीलात दर्ज करेंगे और निज़ाम फौरी तौर पर नादरा और EOBI के डाटा के ज़रिए तस्दीक करेगा, जिससे इंसानी मदाखलत के बगैर शफाफ इंदराज मुमकिन होगा। सेक्रेटरी मेहनत रफ़ी कुरैशी ने बताया कि वर्कर्स वेलफेयर कार्ड के ज़रिए मजदूरों को डेट ग्रांट, शादी ग्रांट और तालीमी वज़ाइफ और दीगर फलाही सहूलतें बराह रास्त मिलेंगी, जबकि सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड और तकाफुल सिस्टम के तहत हर रजिस्टर मजदूर को मुल्क भर के 250 से ज़ायद अस्पतालों में 7 लाख रुपए सालाना तक की हादसाती हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की सहूलियत दस्तयाब होगी। खबर देंगे पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकजी सदर महर हमीद अनवर, क़सूर से मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर पंजाब असम्बली सफिया सईद, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब क़सूर अता मोहम्मद क़सूरी की प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ललियानी रजिस्टर्ड आमद, सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद डॉक्टर असगर अली शहजाद, सरपरस्त आला मोहम्मद इमरान सल्फ़ी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेठ मोहम्मद हुसैन, सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल हाजी मोहम्मद इब्राहिम समेत दीगर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकजी सदर महर हमीद अनवर, MPA मुस्लिम लीग नवाज क़सूर सफिया सईद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट अल्लामा इफ्तिखार नकवी की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल समेत दीगर सहाफ़ी बरादरी को अपने अपने हिस्से का काम करने की ज़रूरत है। ये वक्त तमाम इख्तलाफात भुलाकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मुल्क भर में अगर कोई सहाफ़ी मुतासिर है तो वो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल से राबता करे, हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब क़सूर की तरफ से भी सैलाब मुतासरीन के लिए खाना फराहम करना काबिल तहसीन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मुत्तहदा अरब अमारात के नामवर शख्सियत अब्दुल्ला ज़ियाद गिलादारी के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने, कारोबार और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने, तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि करीबी ताउन न सिर्फ दोनों ममालिक की मौशी तरक्की में मददगार साबित होगा बल्कि अवामी रवाबित को भी फ़रोग़ देगा। अब्दुल्ला ज़ियाद गिलादारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और लीगर 500 ग्रुप के रुकन और UAE के सफ़े अव्वल के मुमताज़ वकील शुमार किए जाते हैं। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने नवाब शाह में मेड बंगलो और मेड मंगली के मकाम पर SM बंद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर सिंध हुकूमत की वज़ीर सेहत अज़रा फजल पेचहो और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी मौजूद थे। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने आपाशी, सेहत, लाइव स्टॉक और रेस्क्यू 1112 के कैंपों का मुआयना किया और इंतज़ामिया को हिदायत दी कि मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र मज़ीद मौसर इक़दामात किए जाएँ। उन्हें मेड मंगली पर दरिया के बहाव के दबाव को कम करने के लिए बनाए गए टी-स्पर, जे-स्पर और ढलवानी स्टड के मुख्तलिफ ढांचों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जबकि भारी मशीनरी और पत्थरों के ज़खायर से किसी भी शगाफ को फौरी पुर करने की तैयारी का भी बताया गया। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने इंतज़ामिया को हिदायत की कि 24 घंटे बंद की निगरानी जारी रखी जाए और रेस्क्यू 1112 के अमले के पास तमाम हंगामी आलात दस्तियाब हों। मेड बंगलो के मेडिकल कैंप में यौमिया 80 मरीजों का इलाज जारी
जारी है। बीबी आसिफा भुट्टो ने कहा कि मुमकिन सैलाब से इंसानी जानों, अमलाक, खेत खलियान और जानवरों को महफूज रखना बड़ा चैलेंज है और इसके लिए मौसर मनसूबा बंदी, मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन और शहरियों की मुकम्मल एहतियात ज़रूरी है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि इंतज़ामिया की हिदायत पर फौरी अमल करें ताकि जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।